लास्ट क्लास में थोड़े पुलिस के प्रॉब्लम देखे थे, राइट, और वेट्स के भी देखे, एंड we did the same problem by keeping those systems inside elevators. Okay, so elevators के दो cases थे, एक elevator going up with acceleration capital A and elevator going down with acceleration capital A. When the acceleration of the elevator is upward, weight increases, so instead of mg क्या आ जाता, m into g plus a आ जाता, and when the acceleration of the elevator is downwards, the weight decreases, m into g minus a आता. the weight increase और decrease जो हो रहा, या increased weight और decreased weight जो आ रहा, वो with respect to कौन से frame से आ रहा, with respect to the frame of the elevator, because that is an नॉन इनर्शियल फ्रेम और एक्सेलरेटिंग फ्रेम. समझ गए? एक्सेलरेटिंग फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम. ठीक है. अच्छा, अभी सपोज आई विल गिव यू वन एग्जांपल, यू जस्ट टेल मी व्हाट आर द आंसर्स फॉर दैट क्वेश्चन. ओके, सो let us take a wedge. Okay, let us take a wedge of inclination theta. तो ये wedge है of inclination theta. Now I'll take this wedge inside an elevator. I'll take this wedge inside an elevator. और जो elevator है, let the elevator have an acceleration of capital A. कैपिटल ए कौन से डायरेक्शन में लेंगे? पहले अपवर्ड लेंगे. ठीक है, सो आई एम टेकिंग दिस. ओके, इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे लेंगे? अपवर्ड लेंगे. सो आई विल मेंशन दैट हियर, एंड बिकॉज there will be confusion between the acceleration that we need to find and the acceleration of the frame, I'll take the acceleration of frame as capital A. समझ गए? अब इस पे एक ब्लॉक लेंगे हम लोग, इस पे एक ब्लॉक लेंगे. So let this be the block and let me place the block on the wedge, on the inclined plane of the wedge. ठीक है. Now let this angle be theta, and let the mass of the elevator be m. ठीक है. Now we have seen what the answers of normal reaction, what you know, when he asks you what the normal reaction is, when he asks you what the acceleration of the block down the inclined plane is. Okay, आपको मालूम है आंसर, बट अभी with respect to wedge करेंगे, अभी with respect to wedge करेंगे. Now with respect to wedge, what will be the acceleration of the block down the inclined plane? A will be equal to G. अच्छा, अगर सिर्फ ग्राउंड पे है तो G sin थीटा आता था, राइट. मगर अभी क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज अपवर्ड, तो G की जगह क्या आ जाता? G प्लस कैपिटल A आ जाता, राइट. क्योंकि सूडो फोर्स नीचे एक्ट करता हर चीज पे और वेट इंक्रीज हो जाता, हर चीज का वेट इंक्रीज हो जाता. तो एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन क्या था? G प्लस कैपिटल A इंटू साइन थीटा down the inclined plane. And this acceleration is what with respect to an observer in the elevator. समझ में आया? अच्छा, सेम प्रॉब्लम, ओनली डिफरेंस हियर इज, देखो क्या करेंगे यहाँ पे? एक्सेलरेशन डाउन लेंगे. एक्सेलरेशन क्या लेंगे? डाउन लेंगे. ठीक है. तो इफ एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर इज डाउन, विल द apparent weight increase or decrease? Apparent weight will decrease. So acceleration will be how much? G minus A sin theta down the inclined plane. A is with respect to an observer inside the elevator. But this is true only if the above is true, only if condition है यहाँ पे. The above holds true only if G is or A is
लेस देन जी, ए इज लेस देन जी, ओनली देन जो है ना ब्लॉक रहता किस पे, वेट्स पे। अगर जी के इफ ए इक्वल्स टू जी क्या हो जाता, इफ ए इक्वल्स टू जी all will both the block and weights will become weightless। समझ में आ? अगर if a is greater than g, if a is greater than g क्या होता, if capital A is greater than g, if capital A is greater than g तो क्या होता, then क्या होता, if A is greater than G, then both the block and weights will stick to the roof। मतलब रूफ पे आ जाते सारे, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये नहीं वेट मतलब एक्सेलरेशन अगर ज्यादा है एलिवेटर का नीचे की तरफ तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इधर ऊपर जाके स्टिक हो जाते हैं, समझ गए? मतलब द नॉर्मल रिएक्शन विल बी बिटवीन दिस सरफेस एंड दिस ब्लॉक एंड वेट। अब जैसे जो ओरिएंटेशन में जाके लगते बट ऐसा जाके लग जाते, ठीक है। अच्छा, क्या हो जाता, ए बड़ा रहा तो सब जाके रूफ पे स्टिक हो जाते ना, जी बड़ा रहा तो यही केस है, पहला वाला केस, जी माइनस ए साइन थीटा रहता एक्सेलरेशन। वेट कम हो जाता बट सिचुएशन सेम ही रहता, मतलब वेट्स पे ब्लॉक ऐसे ही रहता और नीचे स्लाइड करते रहता, समझ गए? थोड़ा कम एक्सेलरेशन से स्लाइड करता। अच्छा, ये जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता, नॉर्मल रिएक्शन बोलो क्या होता, नॉर्मल रिएक्शन जनरली क्या रहता, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा रहता, यहाँ पे क्या रहता, एम जी प्लस ए कॉस थीटा रहता, समझ गए? नॉर्मल रिएक्शन है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे क्या रहता नॉर्मल रिएक्शन, एम जी माइनस ए कॉस थीटा, ये इफ ए इज लेस देन जी, समझ गए? इफ ए इज लेस देन जी, मैं बताता हूँ फिर, तो ये ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, समझ गए? ठीक है ना? ओके, द अबव केस इज ट्रू ओनली इफ ए इज लेस देन जी, ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है, क्लियर? मतलब एक्सेलरेशन इतना रहता, ये होता, अदरवाइज क्या होता, इफ ए इक्वल टू जी, एन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था, एन इक्वल्स टू जीरो, एन इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि वेटलेस आ गया तो कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहता किसी के भी बीच में, समझ गए? पूरा वेटलेसनेस आ गया, समझ में आई बात? क्लियर? ओके, नेक्स्ट आई वांट टू गो टू नेक्स्ट टॉपिक हियर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ये जो ब्लॉक का प्रॉब्लम था, टॉपिक ये जो ब्लॉक का प्रॉब्लम था, देखो अगर सपोज इसका एक्सेलरेशन इधर ए था, क्या था, ए साइड में था, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन साइड में ए है, इसका वेट क्या है बोलो, एम जी है, नीचे की तरफ वेट क्या है, एम जी, आई एम राइटिंग एम जी, और इसके कंपोनेंट्स क्या है बोलो जल्दी से, एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा, तो ये एम जी कॉस थीटा है
और ये mg sin थीटा है, ठीक है। समझ गए? और ये जो एक्सेलरेशन है वेट का, उसकी वजह से क्या होता? एक्सेलरेशन जो वेट का है उसकी वजह से क्या आता? ma इधर आता, ma इधर आता, y इधर आता, सूडो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता, ठीक है। उसके भी दो कंपोनेंट्स रहते, बोलो क्या क्या? ma cos थीटा इधर रहता, समझ गए? ये ma cos थीटा है, ठीक है। ये ma cos थीटा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ma cos थीटा। क्यों cos थीटा? क्योंकि ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो ये ma cos थीटा होता। समझ में एक बात? तो ये ma cos थीटा है, यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, ये जो ma cos थीटा आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द वेट जा रहा, समझ में आई बात? ये ma cos थीटा। और ma sin थीटा किधर रहता? क्योंकि वेक्टर जो है ना, वेक्टर के आइदर साइड रहता, कंपोनेंट्स क्या रहता है वेक्टर के आइदर साइड। तो ऊपर आपको क्या आ जाता है ma, ये क्या है? ma sin थीटा, ठीक है। समझ में आया? नो, इफ, बोलो इफ mg cos theta is greater than ma sin theta, normal reaction will x, and a normal reaction will be equal to mg cos theta minus mg ma sin theta, right? देखो, समझ गए? देखो, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव आना है तो mg cos थीटा ज्यादा रहना ma, नहीं तो क्या होता? The block will separate from the weight. The block will separate from the weight. Condition क्या है? This is true. Above is true if हाँ, तो क्या लिख सकते हैं उसको? mm कैंसिल किया, then g cot थीटा, g cot थीटा, समझ गए? क्लियर ना? जी कॉट थीटा, समझ गए? इसको फोन पे कनेक्ट करना पड़ता, वाईफाई स्लो है, वो तो मेरे घर का वाईफाई लाना पड़ता। ठीक है, समझे आप? अच्छा, एक बात, ए क्या होता? ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द वेट क्या रहता? बोलो बोलो क्या रहता? ए टू जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। डू यू एग्री? ये कहाँ से आया? देखो, डाउनवर्ड फोर्सेस क्या लग रहे? mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन लग रहा, ma cos थीटा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन लग रहा, समझ गए? तो नेट फोर्स क्या है? mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा, मतलब कैपिटल है।
समझ गए? इक्वल टू एम ए लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, समझ गए? तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ लेंगे, नेट फोर्सेस क्या है? एम ए एम जी, बोलो अम्मा, प्लस एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो आपको यहाँ से आ जाता, समझ गए? यहाँ से ये आ जाता, एम एम कैंसिल हो जाता, ए इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा था। आ गया ना? Now the thing is, most important thing is this acceleration is what? This acceleration is acceleration with respect to weight. समझ गए? A equal to g sin theta प्लस a cos theta, ये जो है ना, ये क्या है? Acceleration with respect to weight है। समझ गए? Acceleration क्या है? With respect to weight है। समझ में आया? Acceleration with respect to weight है। What to do if I need to find acceleration with respect to ground? Acceleration with respect to ground मालूम होना है तो क्या करना? No, find acceleration a prime लेंगे, ठीक है, with respect ground। समझ में आया? वैसे रिवर प्रॉब्लम कराया था, क्या बोला? अगर बोट का स्पीड वीबी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर और रिवर का स्पीड वीआर है, तो बोट का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर होता है। समझ गए बात? देखो हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं? वेट्स का और ब्लॉक का ऐड करे तो जो है ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है। समझ में आया? देखो सबसे बॉय इज वॉकिंग ऑन ए ट्रक, ट्रक इज मूविंग विद 10 मीटर्स पर सेकेंड, बॉय इज वॉकिंग विद 2 मीटर्स पर सेकेंड ऑन द ट्रक इन द डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बॉय का क्या होता? 12 मीटर्स पर सेकेंड होता है। सपोज ट्रक इज मूविंग विद 10 मीटर्स पर सेकेंड ऑन ग्राउंड एंड बॉय इज वॉकिंग ऑन ट्रक विद 2 मीटर्स पर सेकेंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रक। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बॉय का स्पीड क्या होगा? 8 मीटर्स पर सेकेंड। समझ? सपोज ट्रक इज मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड, boy is walking on the track with 4 meters per second perpendicular to the direction of truck। तो respect to ground क्या होता है? स्पीड दोनों 90 डिग्री पे है। नहीं, suppose truck is going in this direction with 3 meters per second and boy is walking 4 meters per second on the truck। तो with respect to ground क्या रहता? ये रहता रिजल्टेंट रहता 5 मीटर्स पर सेकेंड रहता। समझ में आया? तो जब ऐड करते ना ये वेलोसिटी, कैसा ऐड करते? वेक्टोरियली ऐड करते। कैसा ऐड करते? वेक्टोरियली ऐड करते। अग्री? समझ में आया? अच्छा, अभी देखो ये वेट्स को ले लो आप फिर से। अब फोर्सेस सारे निकाल दे रहा हूं मैं, बिकॉज आई एम लुकिंग एट द वेलोसिटीज। ठीक है, तो फोर्सेस सारे निकाल लिया, ठीक है, समझ गया? फोर्सेस सारे निकाल दिया, तो इसका एक्सेलरेशन इधर है ए, डू यू एग्री? इसका एक्सेलरेशन इधर है ए, और ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक वेज है, वेज का एक्सेलरेशन कैपिटल ए है। समझ में आया? अब मेरे को ये दो एक्सेलरेशन ऐड करना पड़ेगा, समझ गए? तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ए, so I will write in vector form just because I need to add in. So a bar is acceleration of block with respect to a bar is what? Acceleration of wedge ground। समझ गए? So what is A prime? Acceleration of block with respect to ground। समझ में आया? तो बोलो रिलेशन क्या है?
ए बार प्राइम इक्वल टू, जल्दी बोलो, ए बार प्लस कैपिटल ए बार। समझ में आया? अब वेक्टर्स को ऐड करना हो तो वेक्टर्स के जैसा ऐड करना, समझ गए? क्या करता हूँ देखो, बेस्ट वे ऑफ एडिंग दिस नॉट यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ यूज करो तो लंबा चौड़ा याद अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी, समझ गए? तो मैं क्या करता हूँ देखो देखो देखो, व्हाट आई विल डू इज, देखो ये ऐसा लिख देता हूँ, देखो ये अगर ए बार है तो इसके कंपोनेंट्स निकालता हूँ। ये क्या होता, ए कॉस थीटा, और ये क्या होता, ए साइन थीटा। रीजन क्या है, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होता, और ये एंगल क्या होता ना, कंपोनेंट्स ऐसा आ जाते हैं आपको, समझ में आई बात? ओके, तो इसको यूज करेंगे हम लोग, ठीक है? ये यूज करेंगे हम लोग, ओके। अभी बोलो क्या करूं, कैसे ऐड करूं? What I'll do is, see, I'll write a bar as, देखो a bar को कैसा लिख सकते हैं, थोड़ा गौर करो यहाँ पे, just pay attention, minus a cos theta I cap minus a sin theta j cap, do you agree? Minus a cos theta I cap minus a cos theta I cap minus a sin theta j cap, क्योंकि अगर इधर रहा तो प्लस आई कैप रहता, इधर रहा तो माइनस आई कैप रहता, इधर रहा तो प्लस जे कैप रहता, इधर रहा तो माइनस जे कैप रहता, समझ गए? तो व्हाट इज ए बार एज, व्हाट इज ए बार रिटन एज, बोलो, ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप, डू यू एग्री? अच्छा, ये बोलो क्या होता, कैपिटल ए क्या होता, बोलो, देख के बोलो, कैपिटल ए क्या होता? कैपिटल ए कॉस नहीं, जीरो ही है वो, देखो पर्टिकुलर है नहीं है ना, है ना, तो वी नीड नॉट रिजॉल्व, ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो क्या लिख सकते, ये आई कैप, दैट्स ऑल। समझ में आया? क्योंकि वो आई कैप के डायरेक्शन में ही है, समझ गए? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रहा तो उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, कंपोनेंट्स वर्टिकल भी नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल भी नहीं रहा, थीटा पे रहा तो उसको कॉस थीटा और साइन थीटा में अलग अलग करके लिखना पड़ता, समझ में आएगा? अच्छा, अब बोलो, व्हाट इज ए प्राइम? ए प्राइम इक्वल्स टू ए बार प्लस ए बार विच इज इक्वल टू, क्या हो जाता है ये, ए प्राइम इक्वल्स टू, जल्दी बोलो क्या होता, ए माइनस ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप। समझ में आई बात? ये आ गया। एक्चुअली आंसर ऐसा भी छोड़ दे सकते हैं आप लोग, मगर अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा, क्या पूछ रहा, मैग्नीट्यूड, तो ए बोल, जल्दी बोलो, मैग्नीट्यूड कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना, ए माइनस ए का होल स्क्वायर, समझ गए? तो क्या था बोलो, तो अभी ए प्लस होल स्क्वायर एक्सपांड करो, क्या था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? माइनस स्क्वायर करे तो प्लस हो जाता, समझ गया? तो कॉमन लो क्या आता, हाँ, ए कॉमन ले लियो तो क्या आता, ए प्राइम इक्वल्स टू रूट ऑफ कैपिटल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर माइनस, समझ गए? एक्चुअली पैरेललोग्राम लॉ करे भी तो यही आता आपको, क्यों? देखो, ए का डायरेक्शन इधर है, ए का डायरेक्शन इधर है, और इसका डायरेक्शन इधर है, समझ गए? ठीक है,
इधर एंगल थीटा है तो ये क्या होता, 180 माइनस थीटा होता, समझ गए। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए कॉस 180 थीटा। 180 माइनस थीटा कॉस क्या होता, माइनस कॉस थीटा, तो क्या आता अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। समझ गए, आया समझ आ गया, ठीक है, समझ में आया, ओके। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बोलो, ठीक है। देखो तो ये सारे निकाल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज दिस, फाइंड टी डैश और टी प्राइम। यू कैन डू प्रॉब्लम, पूरा कर सकते हैं आप लोग, लंबा चौड़ा, ठीक है। मगर आप लोग ऑलरेडी कई बार कर लिया, अभी डायरेक्टली आंसर बोलना, समझ गए। तो पहली बात ये बोलो कि टी डैश क्या होता है, टी से कंपेयर करें, टी डैश क्या होता, टी डैश इक्वल टू टी के टर्म क्या होता, टी प्राइम। यहाँ पे टी प्राइम है, क्या होता, बोलो नंबर फिर क्या होता, 2D। अब ऑप्शन क्या है, क्या यहाँ पे, अच्छा ओके। तो बोलो 2T है, और T क्या है, T की वैल्यू क्या है, बोलो बोलो बोलो, T की वैल्यू क्या आती है, अगर इधर M1 है और इधर M2 है तो, हाँ इसका मास M1 है और इसका मास M2 है, तो टेंशन की वैल्यू क्या आती है, भूल गए, नहीं वो तो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन होता है M2 माइनस M1 बाई प्लस M1 इंटू जी होता। टेंशन क्या होता, टेंशन ना बोलो 2 M1 इंटू जी, समझ गए। अच्छा याद रखना भी इजी है, एक्सेलरेशन का क्या था फॉर्मूला, M2 माइनस M1 बाई M2 प्लस M1 इंटू जी था। तो मास का केजी कैंसिल हो जाता, जी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ए का भी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, समझ गए। यहाँ पे देखो, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका केजी है और इसका केजी स्क्वायर है, समझ गए। तो केजी स्क्वायर और केजी कैंसिल हो जाता और आता क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ गए। यहाँ पे 2 आता जब 2 ब्लॉक लटक रहे, एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल पे है और एक ब्लॉक नीचे हैंग हो रहा है, तो क्या आता, M बाय M1 प्लस M2 आता, समझ गए। तो सारे चीजें याद रखना आप लोग। तो बोलो अभी टी डैश क्या होता, देयरफॉर टी डैश इक्वल्स टू, बोलो जल्दी, 4 M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू जी। अच्छा जी जब होता, जब एलिवेटर स्टेशन, गौर करो क्या है, ऊपर ए से जा रहा है, तो जी की जगह क्या आता है यहाँ पे, जी प्लस ए आता, जी प्लस ए आता। तो मैं थोड़ा रिप्लेस कर दे रहा हूँ इसको, देखो ये इधर लिख दिया और इधर क्या है, जी लिखना रॉन्ग है एक्चुअली, क्योंकि टी ऊपर एक्सेलरेशन ए ऊपर है, तो यहाँ पे जी प्लस कैपिटल है, जी प्लस कैपिटल ए आना चाहिए, तो यहाँ पे भी तो ये आंसर है आपका, समझ गए, क्लियर, समझ में आया ना, ओके।
ये प्रॉब्लम देखो अभी। क्या बोले? अभी भी नहीं आया? यहाँ पे 3 ब्लॉक्स है, ठीक है। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है। 10 kg का नीचे आके 2 kg के ऊपर जा सकता है, या 2 kg के नीचे आके 10 kg का ऊपर जा सकता है। बट ऑब्वियसली अगर रॉन्ग भी एज्यूम करें आपको आंसर में नेगेटिव आ जाता, तो इसका कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फिक्स पुलिस है। क्या है? फिक्स पुलिस है, 2 फिक्स पुलिस है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? अगर इसमें टेंशन टी है, अगर इसमें टेंशन टी है अगर, तो बाकी के 2 स्ट्रिंग्स में टेंशन क्या रहता? बोलो। इसमें टेंशन टी है, तो ऊपर के जो 2 स्ट्रिंग्स है ये और ये, उसमें टेंशन क्या रहता? बोलो। लेट मी टेक इट एज टी डैश, टी प्राइम। समझ में आया? ये प्रॉब्लम बहुत गौर से देखो, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलते। तो इसका टी प्राइम ले लिया, इसका भी टी प्राइम ले लिया, ठीक है। तो अगर ये टी प्राइम और टी प्राइम है तो ऊपर भी इधर टी प्राइम ही आता, इधर भी टी प्राइम आता। समझ गए? तो इधर भी टी प्राइम आता और इधर भी टी प्राइम आता। अब द क्वेश्चन विल बी गिवन एज दैट इंस्टेंट पे पूछता क्या है। हाँ, सिमेट्रिकल है बोल के दोनों इक्वल यहाँ पे। अगर इधर 2 kg रहता, उधर 3 kg रहता तो सिचुएशन रहता था, ठीक है। पर यहाँ पे दो kg है, इसलिए सिमेट्रिक है सिचुएशन, इसलिए। हाँ, अच्छा, और एक बात यहाँ पे जो है ना, एंगल एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब क्या? जिस इंस्टेंट पे क्वेश्चन पूछा गया और जिस इंस्टेंट पे वैल्यूज पूछ रहा हूँ, किसके वैल्यूज पूछ रहा? जो भी है, टेंशन पूछ रहा और एक्सेलरेशन पूछ रहा ब्लॉक के, उस इंस्टेंट पे यहाँ पे एंगल क्या है? थीटा है। यहाँ पे एंगल क्या है? थीटा है। समझ में आएगा? एंगल क्या है? ये थीटा। समझ में आया? अब पहली बात ये है कि यहाँ पे कुछ है नहीं, मास है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है? कोई मास नहीं है। अगर कोई मास नहीं है तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या रहता? 0 रहता। क्यों? नेट फोर्स इज इक्वल टू m है ना। इक्विलिब्रियम पे नहीं है वो पॉइंट, इक्विलिब्रियम पे नहीं है। बट अगर कोई मास नहीं है, देखो एफ नेट इक्वल टू m लिखते हैं। अगर मास 0 है तो वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पे रहो या ना रहो, वहां पे एफ नेट क्या आना? क्योंकि वहां पे कोई मास है नहीं। समझ में आया? इसका मतलब अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स। समझ गए? लेफ्ट और राइट बैलेंस रहता, अप और डाउन बैलेंस रहता। और यहाँ पे कोई लेफ्ट राइट कोई फोर्स लग रहा नहीं। समझ गए? क्यों? ये दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आता और इसका नीचे है। समझ गए? तो क्या है रिलेशनशिप टी और टी डैश में? टी इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, टी डाउनवर्ड है, इक्वल्स टू ऊपर क्या है? टी डैश इधर और इधर लग रहा ना, तो रिजल्टेंट क्या था? 2 वेक्टर्स है अगर ए और ए,
अब इनके बीच में एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट क्या आता? वेरी गुड, 2t cos थीटा बाई 2, याद रखो 2t cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या आता है 2t डैश 2t डैश cos थीटा बाई 2 आता नहीं आता? 2t प्राइम cos थीटा बाई 2। डू यू एग्री विद दिस? समझ में आ रहा है? ठीक है, 2t cos थीटा बाई 2। अब दोनों में रिलेशनशिप आ गया आपको t डैश और t में, समझ गए? तो t डैश इक्वल टू क्या लिखते हैं आप? बोलो। therefore dash is equal to t by 2 cos थीटा। समझ में आया क्या? क्लियर ना? अब एक्सेलरेशन, हम लोग को एक्सेलरेशन मालूम करना किसके? 10 kg ब्लॉक के 2 kg एक्सेलरेशन मालूम करना। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए क्या करना है देखो, कोई सिंपल रिलेशन नहीं है, तो हम लोग को एक्सेलरेशन मालूम करना पड़ता। तो देखो लेट अस सी, 10 kg 2 kg यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 10 kg 2 kg 2 kg, समझ गया? क्लियर? अच्छा, अगर इसका एक्सेलरेशन ए डाउन है और इसका क्या है? अपवर्ड कितना रहता है इन दोनों का? कुछ और रहता, ए प्राइम रहता है, इसका भी ए प्राइम रहता है। अब मेरे को रिलेशनशिप निकालना है किसमें? 10 kg के एक्सेलरेशन में और 2 kg वालों के एक्सेलरेशन। और ये 2 kg वालों का दोनों को इक्वल क्यों लिया? दोनों भी 2 kg है, सिमेट्रिकल है सिचुएशन, इसलिए दोनों का इक्वल लिया, नहीं तो अलग अलग लेता था। समझ गए? क्लियर? हाँ, अब देखो, अब एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा। अच्छा, ये टेंशन्स निकाल दे रहा हूँ, मेरी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है? टेंशन्स निकाल दिया। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे, अच्छा ये थीटा बाजू लिख देंगे, बाद में लिखेंगे। अच्छा, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पे इधर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना? ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो एंगल है इधर, ये कितना है? ये एंगल, ये एंगल थीटा बाई 2 है ना? कैसा मालूम थीटा बाई 2 है? सिमेट्रिक है सिचुएशन, समझ गए? तो आधा रहना है, थीटा बाई 2 है, समझ गए? अच्छा, वो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये साइड मैंने x ले लिया और ये साइड y लिया और ये साइड r लिया, तीनों में रिलेशन क्या आता? ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना? r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। डू यू एग्री? अच्छा, मेरे को ये बोलो, जैसा जैसा ब्लॉक मूव होते रहते, जैसा जैसा ब्लॉक्स मूव होते रहते, आर की वैल्यू बढ़ते जाती है और वाई की वैल्यू भी बढ़ते जाती है। डू यू एग्री? अगर ये ब्लॉक नीचे आ गया थोड़ा, तो ये ऐसा हो जाता है ना ट्रायंगल, तो आर की वैल्यू भी बढ़ती है और वाई की वैल्यू भी बढ़ती है, मगर एक्स की वैल्यू कांस्टेंट, एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। समझ गए? यहाँ पे देखो, मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑब्जर्व दैट x and r, sorry not x and r, y and r are variables and but x is constant, x is a constant
as the blocks move. Agree? तो क्लियर दिख रहा सिचुएशन, एक्सचेंज नहीं होता अगर ये चेंज होता, समझ गए? नेट नहीं लग रहा तो बच्चों के इससे ले रहा हूँ। नहीं आ रहा, वो भी लग रहा, वो डाटा हो गया। 2:30 को स्टार्ट हुआ, नहीं लगा, उधर बहुत ट्राई करा, इधर भी ट्राई करा। हो गया, ठीक है, क्लियर? प्रॉब्लम खत्म हो गया। नहीं 10-15 मिनट में होगा। अप्लाइंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। डेरिवेटिव क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू टी। तो x तो कांस्टेंट है, उसका क्या डेरिवेटिव? 0। समझ गए? तो 0 प्लस y का 2y आता। अगर t देखो y स्क्वायर का 2y आता, t स्क्वायर रहता तो 2t लिख के छोड़ देता था, 2t लिख के छोड़ देता था। मगर y को विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या करते हैं? चेन रूल अप्लाई करते हैं, dy बाई dt। समझ गए? dy बाई dt इक्वल्स टू 2r इंटू dr dt। देखो भाई, टी स्क्वायर रहा तो 2t लिख देते, समझ गए? मगर y स्क्वायर रहा तो 2y इंटू चेन रूल लगाते, dy बाई dt। r स्क्वायर रहा तो 2r इंटू dr बाई dt लिखते। समझ गए? ऐसा करते, समझ गए? क्लियर? ओके। तो मेरे को बोलो 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो क्या है? dy बाई dt इक्वल्स टू और dy बाई dt इंटू y बाई r इक्वल्स टू dr बाई dt। समझ में आया? समझ में आई बात? अच्छा मेरे को ये बोलो dy बाई dt क्या है? dy बाई dt इज द स्पीड ऑफ 10 मीटर ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक। dy बाई dt जो रेट से y चेंज हो रहा ना, वही रेट से जो है ना ये ब्लॉक नीचे जाता, क्योंकि जितना बड़ा होता ये भी उतना नीचे जाता। तो dy बाई dt इज द वेलोसिटी ऑफ 10 kg ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ 10 kg ब्लॉक। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो, y बाई r इंटू dy बाई dt को क्या लिखेंगे? v लिखेंगे इक्वल्स टू dr बाई dt। क्या है? जितना dr बाई dt आता ना इधर, उतना जो है ना 2 kg ब्लॉक ऊपर जाता है। हाँ, जितना r बढ़ते जाता ना, वो कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा, यहाँ से आ रहा ना। तो dr बाई dt इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो उसको क्या लेंगे हम लोग? v डैश लेंगे। क्या लेंगे? v डैश और v प्राइम लेंगे। समझ गए? तो v और v प्राइम में मेरे को रिलेशनशिप आ गया। I'll write it down। y by r क्या होता है? बोलो y by r। यहाँ पे देखो y by r क्या है? y by r is adjacent side by hypotenuse, adjacent side by hypotenuse। cos थीटा by 2 है, cos थीटा by 2 है। तो क्या आता बोलो? रिलेशनशिप क्या आया? v इंटू कॉस थीटा बाई इक्वल्स v प्राइम। समझ में आया? v इंटू कॉस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू v प्राइम। अब फिर से अगर डेरिवेटिव लगाए विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर फिर से डेरिवेटिव लगाए विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आता बोलो? तो अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी अगेन, क्या आता? टी का क्या आता? v का a आता। अच्छा मैं लिख देता हूँ dv बाई dt और cos थीटा बाई 2 कांस्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या पूछ रहा? जब थीटा बाई 2 है सिचुएशन क्या है पूछ रहा, तो cos थीटा बाई 2 मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ। क्या है? cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू dv डैश बाई और dv प्राइम बाई dt। तो क्या आता है? ये a आ जाता, a cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू a प्राइम। आ गया? ठीक है। अब मेरे को ये बोलो,
यहाँ से क्या करेंगे, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स आते हैं। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन पहला क्या आता, ये फिर से ले लो। सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, अभी सेकेंड लॉ अप्लाई करें तो क्या आता देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जी ब्लॉक के लिए करो, फॉर द 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक किससे जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नहीं, ऊपर जा रहा है। तो ऊपर फोर्स क्या है, टी प्राइम माइनस 2g, टी माइनस 2g इक्वल्स टू, बोलो 2a प्राइम, समझ में आया। और फॉर 10 kg ब्लॉक बोलो, नीचे क्या ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा 10g माइनस टी इक्वल्स टू, समझ में। मगर इसको हम लोग जो है ना इन टर्म्स ऑफ टी भी लिख सकते हैं। क्या है इन टर्म्स ऑफ टी है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 2t cos थीटा बाई 2 माइनस 2g इक्वल एक cos थीटा बाई 2, समझ गए, समझ में आया नाम। ये क्या हो जाता, a cos थीटा, टी प्राइम का करेक्ट लिखे आप लोग, टी प्राइम क्या था, टी बाई 2 का टी बाई था, टी बाई है, टी बाई डिनोमिनेटर में है, ठीक है, बाई बोलो cos थीटा बाई, अब ये दोनों सॉल्व कर सकते हैं आप। कैसा सॉल्व करना, अगर टेंशन मालूम है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया तो ए कैंसिल हो जाता और टेंशन आ जाता, समझ गए। और ए मालूम करना है तो क्या करते, ए मालूम करना है, पहले ए मालूम करेंगे। देखो कैसा करेंगे, देखो 10g माइनस 10a इक्वल टू टी हो गया पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाता, जल्दी बोलो, 2a cos थीटा बाई 2 प्लस 2g इक्वल टू 2t बाई cos थीटा बाई 2, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब दोनों को क्या करते हैं, दो इक्वेशंस को जल्दी बोलो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो क्या क्या कैंसिल हो जाता, टी टी कैंसिल, समझ गए। तो क्या बच जाता, बोलो ऊपर 10 कॉमन आ गया, जल्दी बोलो, जी माइनस ए बाय 2 कॉमन ले लो, ए cos थीटा बाई 2 प्लस जी इक्वल टू cos थीटा बाई 2, समझ में आया, क्लियर। तो ये क्या हो गया 5, ठीक है। तो बोलो क्या क्या था, ए क्या था, जल्दी बोलो 5g। अच्छा ये 5 इंटू 2 10 हो जाता, फिर ये दोनों 10 g माइनस ए इक्वल्स टू ए cos थीटा बाई 2 प्लस जी इंटू cos थीटा बाई 2, समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 5 इंटू 2 करेंगे तो समझ में आता। तो जल्दी बोलो नेक्स्ट स्टेप, 10g माइनस 10 इक्वल्स टू ए cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस जी cos थीटा बाई 2, समझ में आया। तो ए एक साइड ले लो, जी एक साइड ले लो, तो क्या आता, जी 10 माइनस cos थीटा बाई 2
ए 10 प्लस स्क्वायर थीटा बाई 2, समझ गए? तो ए इक्वल टू क्या था बोलो? अगर यहाँ पे थीटा की कुछ वैल्यू देता तो आसान हो जाता था, समझ गए? लाइक थीटा की वैल्यू 120 देता ना, तो यहाँ पे cos थीटा बाई 2 की जगह हम लोग 1/2 लिख ले सकते, समझ गए? तो आंसर आता। समझ एग्जाम्पल, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्रीज, ए इक्वल्स टू जी इंटू 10 माइनस cos 60 बाय 10 प्लस cos स्क्वायर 60, समझ गए? तो ए क्या था? 10 माइनस हाफ बाय 10 प्लस 1/4। ए इक्वल टू क्या था बोलो? 19/2, 19/2, 41/4, तो क्या आता बोलो? 38/41 आता, समझ गए? अच्छा, आंसर पे गौर करो, जब भी आंसर आता आंसर पे गौर करना। क्या है आंसर? 38/41 इंटू जी। अच्छा, 38/41 ऑलमोस्ट 1 है ना? 38/41 क्या है? ऑलमोस्ट 1 है। ऑलमोस्ट 1 इसीलिए आया क्योंकि नीचे बीच में थोड़ा बहुत ही हैवी ब्लॉक लगाया था आपने, और 2 kg जो है ना ज्यादा उसको अपोज नहीं कर रहे, ठीक है? तो इसलिए जो है ना ऑलमोस्ट आपको बड़ा आया एक्सेलरेशन, ऑलमोस्ट जी से थोड़ा कम आया, जी से थोड़ा कम आया। तो ए प्राइम क्या होता बोलो? ए प्राइम, ए प्राइम जल्दी बोलो। ए प्राइम क्या है? ए प्राइम इक्वल्स टू ए इंटू, हाँ, ए इंटू cos थीटा बाई 2, ए इंटू cos थीटा बाई 2 which is equal to how much? a into half cos 60 ना? तो a प्राइम इक्वल टू कितना है जल्दी बोलो? a by 2 which is equal 19, जल्दी बोलो? 41 इंटू जी। अच्छा, एक चीज गौर करो, a प्राइम की वैल्यू क्यों है? हाँ, क्योंकि हाँ, ये देखो 10 kg वाला अगर यहाँ पे आया, 10 kg वाला यहाँ पे आ गया, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ये इतना नीचे आ जाएगा, ये उतना ऊपर नहीं जाएगा, समझ गए? क्यों? हाँ, ये लोग इन थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एनीवे वी विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है? कंटिन्यू टुमारो। बात करो।